Respectable participants, I'm your resource person, your teachers in the BCRW subject. आज हमारा पहला लेक्चर है और before the start of this lecture, let me introduce myself to you people. ताकि हमारी थोड़ी सी फेमिलियरिटी जो है that must be developed between both of us. कि आप भी मुझे जाने और मैं भी आपके बारे में कुछ जान सकूं. लेकिन एज योर नंबर इज टू हाई, मैं आपका तारुफ तो नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं अपना तारुफ करा देता हूं. तो पार्टिसिपेंट्स, आई एम रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल फ्रॉम पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस. After completing my education from Government College Lahore in 1980, I joined Provincial Management Service in the province of Punjab. Afterwards, I appeared in CSS and qualified it, and finally landed in Pakistan Audit and Account Service. So the department to which you people belong is my parent department. After my CSS, I first joined Pakistan Military Accounts. During my service career, I served variety of federal as well as provincial organizations in different capacities to serve the different governments, Punjab government, federal government, and likewise autonomous bodies. I served in Pakistan Military Accounts. I served in AG Office Lahore as Deputy Accountant General. I served in Pakistan Railways. I served in WAPDA. I served in Pakistan missions abroad. पाकिस्तान की जितनी एम्बेसीज हैं उनके ऑडिट के ऊपर भी मैंने काम किया है, एम्बेसीज में ऑडिट का. Then I served as Deputy Director Audit, Civil Audit Punjab. I served on deputation as Director Finance in a public sector university in Lahore. After completing my deputation period in the public sector university, I was repatriated to my audit department, and I was posted as Director Audit Works Pakistan. Then I was promoted in grade 20 and was posted as Joint Secretary in the Ministry of Housing and Works, Islamabad. Afterwards, I was posted back to my parent department and posted as Director General Audit Works, Provincial Lahore. This is the profile of my service career. My qualification is MSc. My qualification is MBA, Finance, HRM. My qualification is, I am also a law graduate. With this brief introduction of myself, I welcome you all to my today's lecture. इसकी तरतीब कुछ यूँ रखूँगा कि मैं आपको टॉपिक के बारे में मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं कुछ चीज़ें आपको डिस्प्ले करूँगा स्क्रीन के ऊपर, फिर आपसे मैं क्वेश्चन आंसर्स भी लूँगा.
दो हिस्सों में हमारा लेक्चर होगा। पहले हाफ के अंदर जो है वो हम, चूंकि मगरिब की नमाज हो रही है आजकल 7 बजे, तो 7 बज के 10 मिनट तक 10 मिनट की ब्रेक आपको दूंगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है हमारे लेक्चर का वो शुरू होगा। तो इस तरीके से हम चलेंगे। फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स के बाद मैं आपको ये लेक्चर जो है ये व्हाट्सएप भी कर दूंगा। इसके नोट्स जो हैं ये भी आप तक पहुंच जाएंगे। तो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। इफ एनीथिंग is not clear to you, you may ask your questions. फैजुल्ला साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। फैजुल्ला साहब, आपकी आवाज मुझे नहीं, कोई तो थोड़ी आ रही है। और अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो फिर पार्टिसिपेंट्स क्यों कह रहे हैं कि उनमें से कुछ को आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। ये मेरी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो कर रहे हैं कि जी कुछ कह रहे हैं क्लियर है, कुछ कहते हैं नहीं क्लियर है। जी सर, उनका नेट का कोई मसला होगी ना सर, अच्छा, उनके बाकी नेट का सब मसला होगा। लगातार क्लियर कह रहे हैं सर। उनके नेट का मसला होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, तो पार्टिसिपेंट से पार्टिसिपेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर है वो पहला लेक्चर है। इसमें हम सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि DCRW जो है हमारा सब्जेक्ट जो है उसके कंटेंट्स सिलेबस के क्या है उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा कि DCRW पेपर जो है उसके अगराज व मकासद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या है। इसके अगराज व मकासद जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जब आप इसको पढ़ लेंगे तो you are supposed to acquire proficiency level knowledge and skill, and all of you will be able to comprehend the concepts and principles of communication in public sector. ये पेपर पढ़ने के बाद आप जो दूसरे कम्युनिकेशन के उसको अंडरस्टैंड करने के आप काबिल हो। यू may be able to apply knowledge and demonstrate interpersonal skills. आपको यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि you may be able to apply interpersonal and intrapersonal skills। ये दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। यह एक बड़ा मफहूम लिए हुए हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन है जो कि इंसान अपने आप के साथ करता है, अपने साथ खुद कलामी करता है। ऐसी जो कम्युनिकेशन है वो इंट्रापर्सनल स्किल कहलाती है। आप अपने साथ इंसान जो है गुफ्तगू करता है
इसको इंट्रापर्सनल स्किल कहते हैं। और फिर जब आप एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो VCR डब्ल्यू के पेपर के अंदर मैं इन दोनों एस्पेक्ट के ऊपर डिटेल में लेक्चर जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये I have just given you the a tip of the subject matter जो कि मैंने यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कराना है। हर एक के ऊपर डिटेल में कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डिटेल में लेक्चर आएंगे, इंट्रापर्सनल्स के ऊपर भी बात करेंगे हम, वो भी डिटेल में लेक्चर बताएंगे। तीसरे नंबर के ऊपर it will help you to understand different types of electronic communication। जो आजकल मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसके की फीचर्स आपको बताऊंगा, उसके बेनिफिट्स आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा, और फिर उसकी लिमिटेशंस भी बताऊंगा। PCRW का पेपर will also help you to understand and write various types of communication used in public sector। पब्लिक सेक्टर जो है, जो कि सरकारी नौकरी जिसके अंदर आप सारे लोग शामिल हैं, इसके अंदर कम्युनिकेशन की टाइप्स कौन सी, कैसे गवर्नमेंट के दफातर जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये तकरीबन कोई 14-15 इसमें है पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन की। उस पर हम डिटेल में हम बात करेंगे, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। देन मैं आपको आपके दफ्तरों के अंदर जो नोटिंग होती है, जो ड्राफ्टिंग होती है, उसके ऊपर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे नोटिंग आप अपनी फाइलों के अंदर करेंगे और कैसे आपको करनी चाहिए, और नोटिंग और ड्राफ्टिंग में फर्क क्या है, इस पर भी लेक्चर आपका अलग से होगा। फिर हम ऑडिट ऑडिट के महकमे से जो लोग होंगे वो ऑडिट कैसे करेंगे, वो ऑडिट की ड्रिल क्या होगी, वो ऑडिट की एक्सरसाइज क्या होगी, वो वहां जाके कैसे ऑडिट पैरास बनाएंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और फिर ऑडिट करने के बाद जो ऑडिट रिपोर्ट्स बनाई जाती है उसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिफ्थ वन ऑब्जेक्टिव जो अगराज और मकासद में आता है वो है कि मैं आपको प्रेसी आपने डेफिनेटली अपने मैट्रिक, इंटर और BA BCom और इस टाइप की क्वालिफिकेशन के अंदर आपने प्रेसी राइटिंग और समरी राइटिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अब यहाँ मैं आपको उसके जो सही मानों में उसका इस्तेमाल होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है आपने अपने दफ्तरों के अंदर, पब्लिक सेक्टर सरकारी दफ्तर जो है उसके अंदर कैसे जो है वो आप रिपोर्टें बनाएंगे, आप समरीज बनाएंगे, आप प्रेसी लिखेंगे, ये चीज़ें जो हैं ये BCRW के पेपर के अंदर वाज़े तौर पर आपके साथ शेयर की जाएंगी। अब मैं आता हूँ आपके कि ये जो पेपर जो सिलेबस मैंने इसके अंदर जो तुफा वालों ने दिया है, इस सिलेबस की उन्होंने तो परसेंटेज मुकर्रर की है। ये परसेंटेज कुछ इस तरीके से है कि फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन पब्लिक सेक्टर एंड देयर प्रिपरेशन, ये 20 से 30% इसकी वेटेज है कि इसके ऊपर मैक्सिमम जो है वो 30% और मिनिमम 20% का क्वेश्चन इसमें से आएगा। बल्कि आप मुझसे कि ये जो पहला क्वेश्चन जो है
ये तकरीबन 30% के करीब आपकी वेटेज ले जाता है। अगला जो है वो आप 40% से 60%, ये वेटेज जो है ये बिफा ने बनाई है। ये 40 से 60% आपकी नोटिंग, ड्राफ्टिंग, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह के बारे में होगा। इसके अंदर आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो उठा के आपको दे सकते हैं कि इसके ऊपर आप लिखें, तो ये 40 से 60% होगा। देन तीसरा पोर्शन इसके अंदर है आपकी सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसके बारे में है। ये सेक्रेटेरिएट की वर्किंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या होती है, तो ये मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस और रूल्स ऑफ बिजनेस जो है इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। इसकी वेटेज जो है वो तकरीबन 20 से 30% है। तो टोटल जब हम मिलाते हैं इसको तो ये 100 मार्क्स का पेपर आपका बनता है। तो दिस इज द ब्रेकअप that has been given by PIFA for your guidance and for my guidance also to prepare the paper, keeping in view the contents according to the weightage. ये बताना इसलिए मकसूद था कि आपको ये जहन में रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं इसका पार्टिसिपेंट्स शायद प्लीज होल्ड ऑन योर क्वेश्चन। मैं आपको टाइम दूंगा आपके क्वेश्चंस लेने के लिए। अभी जस्ट मुझे थोड़ा सा स्टार्ट ले लेने दे। ये चीजें साथ साथ हमने क्वेश्चन लेने मैंने शुरू कर दिया तो शायद फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट ना हो पाए। तो प्लीज आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं पहले हाफ के जो लेक्चर है उसके एंड पर मैं आपको 5-7 मिनट क्वेश्चन दूंगा, उसमें आप अपने सवाल जो है वो पूछते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप इंतजार फरमाइए। सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू शेयर विद यू पीपल के कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, कम्युनिकेशन के मीनिंग क्या है। The English word communication has been derived from the Latin word communis, which means common. Consequently, it implies that the communication is common understanding through minds and hearts. This common understanding results not only through transfer of information and idea, but also from form transmission of the attitude. अब ये जो डेफिनेशन जो क्रैक्स उन्होंने दिया है कि ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग की एक चीज है कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपके दिमाग और आपके दिल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं दोनों। आप उस वक्त कम्युनिकेट करते हैं जब आपका माइंड चाहता है, जब आपका दिल चाहता है। अगर दोनों में से एक ना चाहे तो आप कम्युनिकेट नहीं करते, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते। तो कम्युनिस मीन्स कॉमन है ये चीज के ये आपके माइंड और हार्ट्स जब दोनों चाहेंगे तो आप एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे। वो गुफ्तगू ओरल भी हो सकती है, गुफ्तगू रिटन फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। और ये कम्युनिकेशन जो है ये ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होती है एक शख्स से दूसरे शख्स तक।
और इससे आपके एटीट्यूड का भी पता चलता है कि आप आप किस टाइप के आदमी हैं, आप किस टाइप के शख्स हैं। आपकी गुफ्तगू से, आपके अल्फाज से, आपकी रिटन कम्युनिकेशन से पता चलता है, आपके मजाज का पता चलता है। आप धीमे लहजे के आदमी हैं, आप अग्रेसिव किस्म के आदमी हैं, ये आपकी गुफ्तगू बता देती है। और मेरा ख्याल है कि यू माइट बी इन a position to understand what I have discussed with you people still now। आपको मेरी शख्सियत के बारे में थोड़ा बहुत इल्म जो है वो हो चुका होगा, और अगर जब आप बोलेंगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कि हाउ मच नॉलेज, the courtesy, the attitude, the behavior you people show towards me while asking the questions। तो ये कम्युनिकेशन से पता चलता है कि आप बोलते कैसे हैं, आपका रवैया दूसरों के साथ कैसा है, आप शर्मीले तो नहीं, आप एग्रेसिव तो नहीं, आप docile हैं, आप सबमिसिव हैं। कौन से करेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपकी शख्सियत को डोमिनेट कर रहे हैं। It only comes through your conversation with another person। और मैंने कहा कि कम्युनिकेट करने के दो तरीके हैं, या आप ज़बानी किसी से बातचीत करेंगे, या आप लिख के किसी को कुछ चीज देंगे। वो लेटर लिखना जो है या इस टाइप का, तो उससे आपके मजाज का पता चल जाता है। मजाज का आप कहेंगे कि मजाज का पता कैसे चलेगा। द वर्ड्स यू यूज एक्सप्लेन योर एटीट्यूड। आपका बिहेवियर उससे पता चल जाता है कि आपके मजाज में तलखी है, आपके मजाज के अंदर ठहराव है, आपके अंदर सबमिसिवनेस है। All these things are pertinent to be derived from your communication। अच्छा, अब अगली जो कंडीशन है इसके अंदर, communication is complete when the receiver understands in the same sense and spirit that the communicator intends to convey। अब यहाँ ये बात जो है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, इसका इन्हिसार भी इस बात के ऊपर होता है कि तो वो को सुन रहा है या वो किस अंदाज में वो आपकी रिटन फॉर्म की कम्युनिकेशन को ले रहा है। जब हम बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच पाए। उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो हाइल होते हैं। मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो इसके अंदर मेरा बयान करने का वो मैटर करता है। आपकी अटेंटिवनेस जो है कि आप कितने एक्टिव होके सुन रहे हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके अंदर ये चीज भी इन्वॉल्व है कि हमारा नेट जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन हमारी हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि आप देख लें कि जो है वो अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो
हमारी गुफ्तगू के अंदर, हमारी कम्युनिकेशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रही है। अब इन सब के ऊपर जब ये इन्हिसार है कि मेरा बोलने का अंदाज जो है वो आपको कन्विंस कर सके, आप अटेंटिवली सुन रहे हो, हमारा नेट प्रॉब्लम ना हो, तो इंफॉर्मेशन कंप्लीटली आप तक, रिसीवर तक पहुंच सकती। जिस सेंस में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो आप तक कंप्लीटली पहुंच रही है, और वो स्पिरिट जो मैं इसमें शो कर रहा हूँ वो प्रॉपरली कन्वे हो रही है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है, ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। अदरवाइज it will create some sort of disturbance, और ये इंफॉर्मेशन जो है ये जो चीजें हैं वो कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होगी जब सारी डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब अगर मैं अपने लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन बेहतर करने की कोशिश करूंगी और आप अटेंटिवली उसे सुन ना पाए, या आपका नेट सिस्टम जो है वो खराब हो, तो मेरा ख्याल है कि मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने में, मेरा ख्याल है, कामयाब नहीं हो पाऊंगा, और आप उसको रिसीव करने में कामयाब नहीं होंगे। तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट इस सेंस में होगी कि अ, जब बोलने वाला जो है उसके सारे मीनिंग्स, उसके मफहूम जो हैं वो कंप्लीटली सुनने वाले तक ट्रांसफर हो जाए। दिस इज द कंप्लीट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम एक शॉर्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि whenever you are asked to define the word communication, तो फिर कौन सी डेफिनेशन जो है वो आपको इम्तिहान के अंदर लिखनी होगी। दिस इज प्योरली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि कम्युनिकेशन इज एन अच्छा, ये WH नॉर्मल और समर, ये दो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं हमारे इस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंदर। इनकी डेफिनेशन मुझे अच्छी लगी, मैंने लेक्चर में शामिल कर ली इसको। तो ये नॉर्मल और समर कहते हैं, डिफाइन करते हैं कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, ideas, opinions, or emotions by two or more persons। कम्युनिकेशन कहते हैं कि ये दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज और ओपिनियंस या इमोशन की एक्सचेंज है, एक दूसरे तक ट्रांसफर का नाम है। जब हम गुफ्तगू करते हैं तो एक शख्स सुनता है, जैसे आप सुन रहे हैं, द फैक्ट्स आई एम टेलिंग, द आइडियाज आई एम फ्लोटिंग, द ओपिनियंस आई एम गिविंग, द इमोशंस आई एम शोइंग। तो ये कम्युनिकेशन जो है ये मेरी तरफ से आपको जा रही है, और आप इसको किस एंगल से देख रहे हैं, वो फैक्टर जो कि कंप्लीट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, उसमें फिट इन अगर हो जाए कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो मैं बोल रहा हूँ आप तक पहुंच रही है, तो आई थिंक कि कम्युनिकेशन जो है वो ठीक हो रही है। तो इस एंगल से ये दिस इज द मोस्ट comprehensive definition that normal normal and summer has given. So if the examiner asks you to give a definition of the communication, so you may write it. अच्छा, यहाँ मैं एक चीज और आपसे मैं अर्ज करता चलूँ कि कम्युनिकेशन की मार्केट के अंदर बहुत सी किताबें अवेलेबल हैं। आप उनके उनसे आप इस्तेफादा कर सकते हैं। आप जो पिच और थर्स्ट फॉर नॉलेज आप पूरी कर सकते हैं।
लेकिन आई वुड एडवाइज यू पीपल के बिकॉज आपने सुबह काम भी करना होता है, शाम को क्लासेस भी लेनी होती हैं, तो अगर आप सिर्फ मेरे दिए हुए नोट्स को आप ठीक तरीके से पढ़ लेंगे तो इट विल सर्व योर पर्पस टू क्वालिफाई द एग्जाम। और आई आल्सो डू होप कि आप लोग जो हैं वो बी कॉम डेफिनेटली किया होगा आपने, तो बी कॉम वाले लोग जो हैं वो कम्युनिकेशन पढ़ के आते हैं किसी हद तक। ये कंटेंट सारे तो शायद उन्होंने ना पढ़े हों, लेकिन किसी हद तक वो इसको पढ़ के आते हैं। तो उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन the way I'm teaching, the way I'm explaining these facts to you will help you a lot to understand this subject in depth, to arrive at a conclusion what this subject speaks about. So please, I would suggest कि definition की हद तक this definition is complete. आप इसको ज़हन में रख के आप अपने पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या हैं, क्या चीज इसके अंदर शामिल होती है, इसके अंदर यूनिवर्सल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? देखें, मैंने पहले एक दो स्लाइड के अंदर आपको इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल की डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन नहीं, नाम लिखा था मैंने, नाम आपके मैंने शेयर किए थे दोनों आपके साथ। तो ये सेलिएंट फीचर्स, इम्पोर्टेंट, इसको जो आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, फीचर्स भी कह सकते हैं। तो उस एंगल से कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कम्युनिकेशन ऑलवेज एग्जिस्ट्स, कम्युनिकेशन हमेशा जो है वो मौजूद रहती है। इसके मीनिंग मैं कुछ यूं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने कि कम्युनिकेशन जो है जरूरी नहीं है कि दो बंदों के दरमियान ही हो। जब आप अकेले बैठे होते हैं तो आप फिर भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने आप के साथ, उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये कहते हैं कि इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये कभी स्टॉप नहीं होगा। आपने देखा होगा दो लोग बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, दो नहीं बैठे, आप अकेले बैठे हैं, तो आपकी सोच का अंदाज जो है वो कंटिन्यू रहता है, आपके दिल में मुख्तलिफ ख्यालात आते रहते हैं दिमाग में, आप सोचते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। फिर आप हम जब सो जाते हैं तो फिर हम ख्वाब की सूरत में हम कम्युनिकेट करते रहते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है ये, इंसान बगैर कम्युनिकेशन के नहीं रह सकता। इसकी तीसरी खूबी ये है कि इट इज ए टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है ये दो तरफा ट्रैफिक भी है। दो तरफा ट्रैफिक से मुराद है कि मैं बैठा हूं, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, आप मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे, अभी मैं आपको टाइम दूंगा बातचीत करने का, तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस होगा। आप मेरे लेक्चर के मुतल्लिका सवालात जब पूछेंगे तो ये कम्युनिकेशन होगी हमारे दोनों के दरमियान, टू वे ट्रैफिक है ये। जब आप अपने तौर पर आप करते हैं कम्युनिकेट अपने आप के साथ, जिसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन जो है वो टू वे होती है। आपका दिमाग कुछ कह रहा होता है, आपका दिल कुछ कह रहा होता है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होता है, कभी उसको ठीक कह रहा होता है। देन चौथा फंक्शन है परसेप्शन। परसेप्शन प्लेज डोमिनेंट रोल इन कम्युनिकेशन।
परसेप्शन कहते हैं देखने के अंदाज को। एक ही चीज को डिफरेंट लोग देख रहे हैं तो उनका परसेप्शन लेवल, देखने का अंदाज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। आप में से आप माशाल्लाह 290 के करीब आज की हाजिरी है, तो 290 लोग जो हैं वो मुझे सुन रहे हैं। हर एक का परसेप्शन लेवल जो है वो डिफरेंट है। हर शख्स जो है वो अपने एंगल से इसको देख रहा है, अपने एंगल से मेरी इस गुफ्तगू को सुन रहा है और उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सारे लोग एक जैसे परसीव नहीं कर रहे, सारे एक लेवल पर रिसीविंग उनकी नहीं होती, डिफरेंट होती है। तो कम्युनिकेशन के अंदर परसेप्शन लेवल डोमिनेंट रोल प्ले करता है। जिस कदर इल्हामात के साथ आप इन्वॉल्व होंगे, आपकी गुफ्तगू जो है वो इतनी जामे हो जाएगी, वो मीनिंगफुल हो जाएगी। अगर आप सिर्फ टाइम गुजारे के लिए आप बैठे होंगे तो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर गैप आने के चांसेस होते हैं। तो परसेप्शन जो है, देखने का अंदाज जो है, दैट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन आवर कम्युनिकेशन प्रोसेस। पांचवी खुसूसियत ये है कम्युनिकेशन की कि इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। ये कायनात के अंदर ये पाई जाती है। जानवर जानवरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंसान इंसानों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक शख्स अपने आप के साथ कम्युनिकेट करता है। तो ये यूनिवर्सली आलमगीरियत इसके अंदर पाई जाती है, ये हर जगह पाई जाती है। ये भी इसकी एक खुसूसियत है। फिर छठे नंबर के ऊपर इट इज ए सोशल प्रोसेस। ये माशरती एक एक तरीकाकार है जिसके अंदर इंसान, चूंकि हम इंसानों के माशरे से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारा ताल्लुक जो है, हम इस प्रोसेस के अंदर जीते हैं। इस प्रोसेस से बाहर हम नहीं निकल सकते। ये माशरती ये हमारा एक एक मसला है। हम बगैर बातचीत किए हुए नहीं रह सकते। आप देख लें कितनी देर आप चुप का रोजा रखेंगे, नहीं हो सकता। और आपकी वेल बीइंग के लिए ये जरूरी है कि आप जो है वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करें। दोस्तों के साथ गुफ्तगू होती है, फैमिली मेंबर्स के साथ गुफ्तगू होती है, आपके जो कुलीग होते हैं उनके साथ गुफ्तगू होती है, आपकी गुफ्तगू आपके पेरेंट्स के साथ होती है, आपके सीनियर्स के साथ होती है, आपकी जूनियर्स के साथ होती है, आपकी लेमैन के साथ गुफ्तगू होती है, बाजार में जाते हैं दुकानदार के साथ गुफ्तगू करते हैं। तो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। हम इसके बगैर नहीं रह सकते। और जो लोग लेस कम्युनिकेट करते हैं, उनकी पर्सनालिटी के अंदर थोड़ा सा मसला जो है वो पैदा होने का चांस हो सकता है। ये भी नहीं कि हम बेतुका ही कोई गुफ्तगू करते रहे, काम की गुफ्तगू करें लेकिन गुफ्तगू के बगैर हम रह नहीं सकते। तो these are the important features, elements, characteristics of the communication है, जिसको उर्दू में खसूसियात कम्युनिकेशन की कहते हैं। आप ये चीजें जो हैं उसको कवर किए जा सकते हैं या इसके अंदर इंक्लूडेड है। बाकी नेक्स्ट जो स्लाइड हमारी आएगी उसके अंदर आई शेयर विद यू पीपल के आ, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके मकासद क्या है, हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं एक दूसरे के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। क्या अगराज और मकासद हैं। द की पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। यहाँ मैं अगेन एक बात आपसे करना चाहूंगा कि पार्टिसिपेंट्स डू फोकस ऑन द लेक्चर एंड द इंफॉर्मेशन दैट आई विल share with you people on WhatsApp.
आपके इम्तिहान के लिए काफी होगा। बाकी आप पढ़ना चाहें तो और किताबें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शायद इतने नॉलेज की आपको जरूरत ना हो। तो इसके अंदर, इसके अगराज़ व मकासद के अंदर क्या पहला मकसद है, इट इट हेल्प्स इन एक्वायरिंग एजुकेशन इंफॉर्मेशन, collecting and analyzing, checking and processing numerous types of communication, both internal and external, to an organization. This often involves initiative to generate ideas and solutions. आप इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, उसको एनालाइज कलेक्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, उसकी अथेंटिसिटी को चेक करते हैं। आपकी अंदरूनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों जगह पर ये इंफॉर्मेशन जो है ये मौजूद होती है। आप उससे नए नए आइडियाज जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं या करते हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन तलाश करते हैं। इट इज हेल्पफुल, कम्युनिकेशन इज हेल्पफुल टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल। नंबर टू, इसका पर्पस क्या है कि इट हेल्प्स इन डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेट, शेयर करना, मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। Sharing information to those who need it to perform their job, make a decision or solve a problem. उन लोगों के साथ जिनको जरूरत होती है इस इंफॉर्मेशन की, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। मसलन आपको जरूरत है इम्तहान पास करने के लिए, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू टू क्वालिफाई योर एग्जाम। तो क्वालिफाई एग्जाम इज ए प्रॉब्लम फॉर यू, तो this communication, this lecture will help you to solve this problem। कि आप इसे अच्छे तरीके से आप सुने, आप मेरे लेक्चर नोट्स को पढ़ें, तो you will be able to qualify your exam। This might involve coordinating plans and communicating goals and structure। All this is possible through disseminating information, sharing of information। तीसरी इसका जो पर्पस है वो, it helps in maintaining relationships। Relationships between co-workers, co-workers कहते हैं साथी जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके कुलीग दफ्तर के अंदर जो है वो co-workers कहलाते हैं। Relationships between co-workers and both suppliers and customers need managing through effective and appropriate communication to ensure continuity of operations and ultimate profitability of the organization। अब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है, हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी का एलिमेंट तो नहीं होता। हम सर्विस डिलीवरी वाले लोग हैं, हम उसको किस हद तक हम अचीव कर पाते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप एक डिपार्टमेंट के साथ, एक के दूसरे के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। और एक मैं बात बताऊं, अकाउंट्स ऑफिस वालों से लोग बहुत नाराज रहते हैं, पता नहीं क्यों। वैसे पुलिस से भी नाराज रहते हैं, और इस टाइप के लोगों से नाराज तो रहना, जिनके साथ सबको काम पड़ता है, नाराजगी तो फिर रहेगी। हर बात तो उनकी मानने वाली नहीं होती। बहरहाल, द कम्युनिकेशन प्रोसेस हेल्प्स यू टू मेंटेन योर रिलेशनशिप्स विद ईच अदर। तो ये तीन बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, अगराज़ व मकासद जो हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर का पोर्शन जो है वो मैं आप ब्रेक के बाद लूंगा। नाउ द हाउस इज ओपन फॉर योर डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर सेशंस। तो ये 5-7 मिनट में आप सवालात जो है वो पूछ सकते हैं।
तो प्लीज फैजुल्ला साहब इन्हें अलाउ करें। आप किसी का सवाल है तो मुझे बताएं। आई एम रेडी टू आंसर। जी, सबसे पहले आपने अपना नाम बताना है, फिर अपना क्वेश्चन बताना है। जी, रेज योर हैंड्स। आप 1 मिनट रिवाइज कर लें। मैं आवाज कम बेटे आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये नोट्स काइंडली आप लेक्चर से पहले शेयर कर सकते हैं? बेटे जरा ऊंची आवाज में बोले। मैं सर ये कह रहा था कि नोट्स आप काइंडली अगर लेक्चर से पहले शेयर कर दें। बेटे ये पॉसिबल नहीं है, ये मैं लेक्चर के बाद ही शेयर करूंगा। आप यहाँ लेक्चर सुने और इसको नोट करें। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर क्विकली। नोट्स मैंने पहले दे दिए तो आप इंसान है ना, हम भूल जाते हैं। आप कहेंगे मेरे पास नोट्स है, मैं पढ़ लूंगा। नोट्स मैं दे दूंगा आपको, लेकिन आप यहाँ कितने अटेंटिव होके आप इसको देखो उसके म्यूट वाली आई सी ऑप्शन आन म्यूट म्यूट वाली पिफा हेडक्वार्टर आवाज ही अच्छी होगी। आपके सवाल का जवाब देना चाहता है। जी क्या कहेंगे फैजुल्ला साहब? जी सर। जी जी फैजुल्ला सर। साहब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे भी। जी जी सर, क्या पूछना चाह रहे हैं सर? रिवाइज कर लिए। नहीं, पिफा हेडक्वार्टर जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? मुश्किल ही है सर। हाँ, मैं इसका जवाब ये दे रहा क्वेश्चन हूँ कि दिखा। प्लीज क्वेश्चन दिखा। attentive while attending my lecture, टेक नोट्स। मैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपको दे रहा हूँ, ये तो चीजें आप लिख भी सकते हैं अपने साथ। तो आपको कोई चीज डिफिकल्ट होगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसके बाद आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, आप याद कर लेंगे इसको। लेकिन अगर मैंने पहले दे दिए तो आपने लेक्चर ही अटेंड करने नहीं आपका आना, क्वेश्चन तो नंबर वो 6 है। जी ठीक है सर, थैंक यू। आप बेशक बाद आपका में क्वेश्चन नंबर 9 है। जी, अनदर पार्टिसिपेंट जिनका क्वेश्चन आज के अभी तक के पोर्शन के साथ है, वो प्लीज आस्क। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, खालिद महमूद बात कर रहा हूँ। आवाज आवाज कम है, प्लीज ऊंची करें आवाज। अस्सलाम वालेकुम सर, खालिद महमूद बात कर रहा हूँ। जी खालिद साहब कहाँ से? सर CLA लाहौर से। CLA लाहौर से। जी जी महमूद हेलो। जी जी। CLA अच्छा लाहौर सर की। ये इसकी कोई बुक नहीं है, आपने रिकमेंड बताई। बेटे जरा ऊंची बोले। सर इसकी कोई बुक अभी नहीं रिकमेंड करेंगे, या सिर्फ ये जो आप लेक्चर दे रहे हैं इन्हीं से ही पढ़ना होगा? मैंने बेटे ये कहा है कि मार्केट में किताबें कम्युनिकेशन के ऊपर मौजूद है, लेकिन एक किताब जो है ये सारे कंटेंट्स जो सिलेबस पिफा ने दिया है वो कवर नहीं करते। आपको जी जी। बहुत सी किताबें कंसल्ट करके तो मैंने आपका ये जो है ये लेक्चर बनाया होता है। बेटर के आप मेरे नोट्स को ही पढ़ें और इसी पर इक्तफा करें। बाकी आप पढ़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आप पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ लें आप। लेकिन सर मैं जी जी जो रिकमेंड की हुई हैं बुक्स सिलेबस में, उनमें से तो नहीं कोई भी लेनी हमने? सिलेबस उन्होंने दिया है, किताबें आपकी हैं मार्केट के अंदर, आप ले सकते हैं वो।
लेकिन वो टॉपिक एक बुक के अंदर एक मिलेगा, दूसरी के अंदर दूसरा मिलेगा, तीसरी के अंदर तीसरा मिलेगा, तो वो आप फिर किताबें खरीदते रहेंगे। चलें ठीक है सर, बहुत तो शुक्रिया। So leave this option to purchase the books, concentrate on the notes and the lecture give you people. See anybody else? और कोई क्वेश्चन किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, उमैर बात कर रहा हूँ लाहौर से। बेटे ऊंची आवाज में। उमैर बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर मेरा क्वेश्चन है, तुम्हारा नाम बोले। नाम दोबारा बोले अपना। फाजुल्ला साहब। जी जी सर। इनकी आवाज बहुत कम है, जरा इनसे रिक्वेस्ट करें, मैं भी कर रहा हूँ कि जरा ऊंची आवाज में बोले। आई एम नॉट लिसनिंग। जी सर, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना भाई, अपना माइक भी बंद कर दो ना भाई, कान नहीं रहे होने चाहिए, वो सारे शोर हो रहा है। जो अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम सर। बंद कर दो। वालेकुम सलाम। सर असद याद बात कर रहा हूँ सर। मेरा क्वेश्चन है नोट्स के हवाले से। असद रियाज कौन से महकमे से है? CLADS से। CLADS से। असद जी रियाज। सर। असद हयात। असद हयात। CLADS। जी सर। जी जी। सर वो नोट्स के बारे में पहले भी एक भाई ने बात की है कि हमें पहले शेयर कर दें। वो पहले मांगने का हमारा पर्पस ये है कि हम ना आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें बताते हैं ताकि हम उनके ऊपर नोट करते जाएं साथ साथ। कोई भी डेफिनेशन है जब आप एक्सप्लेन करते हैं ना उनको आसान वर्ड्स में, तो हम वो आसान वर्ड्स भी साथ साथ लिखते रहेंगे। इससे हमारे लिए वो आसानी हो जाएगी उसको याद करने में। बाद में पेपर के वक्त में वो जल्दी उसको प्रिपेयर कर लेंगे। बेटे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि आप को नोट्स में पहले देने को मैं दे दूं, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके इससे डिफरेंट है। सही है। आप सुस्ती का शिकार हो जाएंगे, आप कहेंगे नोट्स है, लेक्चर भी अटेंड करने की क्या जरूरत है। मैं वो नहीं चाहता, मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं समझाऊंगा, यहाँ एक एक लफ्ज समझाऊंगा, बाद में इसको शेयर कर दूंगा आपको। फिर भी क्वेश्चन करने का बाद में अगले लेक्चर से पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा कि पिछले लेक्चर का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया। सही सर, आपकी तो बात प्लीज ठीक है। स्टिक टू दिस लेकिन थिंग। इससे आपकी अटेंशन मुझे जो है वो ज्यादा मिल जाएगी और आप अपने लेक्चर को सही तरीके से पढ़ पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जमील बात कर रहा हूँ CLADS लाहौर से। CLA के कितने लोग हैं बेटे? सर CLA के काफी लोग हैं, 100+। 100+? जी जी सर। सारे लाहौर से हैं या बाहर से भी CLA से हैं? सर जो LO's ऑफिस है वहाँ बाहर से लोग कनेक्ट होंगे इसमें, तो मेन ऑफिस से तो अभी। जी जी सर, पूछना ये था कि आज का जो सेशन, आज की क्लास है वो यानी कंप्लीट हो गई है या अभी ब्रेक के बाद दोबारा मतलब ज्वाइन करेंगे? जी जी, ब्रेक के बाद आधा लेक्चर रहता है बेटे अभी। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, यही पूछना था। हाँ आधा लेक्चर अभी रहता है। वो अभी मैं जी सर। नमाज की ब्रेक देने लगा हूँ, आपके क्वेश्चन आंसर भी लूंगा, बाकी लेक्चर भी कंप्लीट करूंगा। जी तो ठीक। फैजुल्ला साहब, अब मेरा ख्याल है कि हम नमाज का टाइम अगर 10 मिनट की ब्रेक है। राइट सर। तो फैजुल्ला साहब, पार्टिसिपेंट्स आप नमाज पढ़ ले। 10 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद दोबारा हम असेंबल होते हैं 7:15 पर इंशाल्लाह।
तो फिर हम बकिया जो क्वेश्चन आंसर है या बकिया लेक्चर जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। ओके ओके। पार्टिसिपेंट्स, हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड है, नेक्स्ट पेज जो है वो बेनिफिट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में है। इसके बेनिफिट्स जो है वो बहुत से होते हैं कम्युनिकेशन के। इसको सबसे बढ़ के जो चीज है वो तो ये है कि यू कीप योर सेल्फ इन्फॉर्म्ड अबाउट द थिंग्स, जो आपके गिरदो नवाब में भी जो चीजें हो रही होती हैं उनसे आप अपडेट रहते हैं, और आपको इफेक्टिव और अप्रोप्रिएट डिसीजन करने में आसानी रहती है। सबसे बड़ा फायदा जो है वो यही दो फायदे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से और फायदे हैं जो कि मैं आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करता हूं कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो अगर अच्छी है, कम्युनिकेशन मैंने अर्ज किया दो तरीकों से होती है, एक रिटन कम्युनिकेशन होती है, एक आपकी ओरल कम्युनिकेशन होती है। दोनों तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, तो इसके फवायद क्या है? ओरल कम्युनिकेशन के फवायद ये हैं कि हम मोस्टली एक दूसरे के साथ ओरली कम्युनिकेट करते हैं। उसके अंदर हमारे अल्फाज, हमारे एक्शंस, हमारा बिहेवियर और हमारी टोन बहुत मैटर करती है। अगर हमारा अंदाज़े गुफ्तगू जो है वो मुनासिब है तो पीपल विल बी कन्विंस्ड कि ये बंदा बहुत अच्छा है। और वो शख्स जिसके लहजे में तुर्शी होगी, जो अल्फाज का प्रॉपर चुनाव करने में नाकाम है शख्स, उसकी गुफ्तगू जो है वो दूसरे लोग सुनना पसंद नहीं करते। प्लीज कीप इन योर माइंड्स कि योर वर्ड्स कन्वे योर बिहेवियर, योर पर्सनालिटीज टू अदर पीपल। लोगों के आपके साथ गुफ्तगू का अंदाज जो है वो ज्यादा मैटर करता है। आपका ओहदा इतना नहीं करता, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं करती, आपके कीमती कपड़े नहीं करते, आप बहुत हैंडसम हैं वो चीजें प्ले नहीं करती, आप बड़े अमीर हैं। ऑल दीज थिंग्स कीपिंग असाइड, the thing that matters a lot, that is your behavior that you show in your communication. कितने अच्छे मौजू अल्फाज के साथ आप अगले आदमी को मुखातिब करते हैं। तो जब आप मुखातिब करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? अगर आप एक सुपरवाइजर हैं, आप इंचार्ज हैं, तो आपके स्टाफ के ऊपर आपका इम्पैक्ट क्या होगा? दे विल कंसिडर यू कि आप हेल्पफुल हैं, आप जो है उनके लिए यूजफुल हैं, आप उनके लिए एक सहारा है, आप उनकी बात सुनते हैं, वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। अगर आप सुपरवाइजर की हैसियत से उनके साथ कुछ चीजें शेयर करते हैं तो वो बड़े गौर से शेयर करेंगे आपके साथ, वो आपसे बड़े एहसन अंदाज से आपको
चीजों को अंडरस्टैंड करने में इट विल हेल्प इट आउट। आपने देखा होगा कि सीनियर जो है जूनियर के साथ बिहेवियर जरा सख्त होता है, तो जूनियर डरते हैं कि उनके साथ हम गुफ्तगू ना करें, कहीं वो नाराज ना हो जाए। तो ऐसे लोग जिनका बिहेवियर दूसरों को पसंद ना हो, वो कामयाब ऑफिसर नहीं कहलाते। वो लोग जो हैं वो उनको अपनी इस्लाह की जरूरत होगी। अपने सुबॉर्डिनेट के साथ आप प्रॉपर वे के अंदर मुनासिब अल्फाज से बात करें, उनको समझाएं, उनके सवालों के जवाब दें, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अगर आप बड़े 30 बार खां बन गए तो शायद मेरा ख्याल है कि आप उनके दिल में घर नहीं कर सके। तो गुफ्तगू का ये जो तरीकाकार है, इसके अंदर ये रोल जो है ये बड़ा रोल, डोमिनेंट रोल प्ले करता है कि आप कैसे दूसरों से मुखातिब होते हैं। दूसरा तरीका इसके अंदर जो मैंने कहा रिटन कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर जो अल्फाज आपके मीनिंग कन्वे कर रहे हैं अगले बंदे को, वो आपकी शख्सियत का आईनादार होते हैं। आप दोनों तरीकों से, इन राइटिंग या इन ओरल फॉर्म, आपकी शख्सियत जो है वो निखर के सामने आ जाती है और आपकी शख्सियत के बारे में लोग अंदाजा लगाने में जरा भी देर नहीं करते। तो टू बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर, आपको ये चीजें मद्देनजर रखनी होंगी। आपके अल्फाज का चुनाव मैटर करेगा, आपकी टोन मैटर करेगी, आपका बिहेवियर मैटर करेगा। अगर ये चीजें जो है वो मुनासिब होंगी तो आपकी शख्सियत निखरेगी, आप अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो जाएंगे। और ये तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप देखते हैं कि अगर आपके अंदर ये सारी खूबियां हैं तो आपके लिए एक प्रेस का बाइस बनेगी सोसाइटी के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, आपके दोस्तों की महफिल के अंदर। अगर आप कहीं काम कर रहे होते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी गुफ्तगू जो है वो आपके लिए कस्टमर ढूंढ के लाती है। एक कस्टमर जो है आपके पास जब आता है तो वो प्लेयर फील करता है टू टॉक टू यू, और अगर आप अच्छे अंदाज से उससे गुफ्तगू नहीं करेंगे तो शायद दोबारा आपका कस्टमर जो है वो आपके पास ना आए और आप लॉस में चले जाएंगे। तो लाइकवाइज जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी गुफ्तगू अच्छी समझी जाती है, वो रिटन फॉर्म में है या ओरल फॉर्म में है, आपके लिए पे रेस की वजह बन सकती है कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, इसको प्रमोट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसे ही होता है ना। और इवन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी तनख्वाह तो ना बढ़े, लेकिन आपके सीनियर, आपके कोलीग्स, आपके जूनियर आपको इज्जत जरूर देते। आपकी गुफ्तगू अच्छी हो, आपकी राइटिंग अच्छी हो, तो सारे लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप प्रमोशन के अंदर भी व्हेनेवर एन अपॉर्चुनिटी अराइजेस, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो जो रिटन और ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर बेस कर रही होती है। आपकी एसियास के अंदर ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं कि आप गुड कम्युनिकेटर हैं, अच्छा लिख सकते हैं। ये पेन पिक्चर के अंदर जो है ये आएगी चीज। तो it is a plus sign, good sign for your promotion in the organization in which you people are working. इसके अलावा भी गुड कम्युनिकेशन के क्या और फवायद हैं, वो ये है कि इट डेवलप्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप तो जो आप कहना चाह रहे हैं वो आपके सुनने वाले अच्छे अंदाज से उसको सुन पा रहे हैं। It brings desirable results.
छठा इसमें जो बेनिफिट है, इट एनहांसेस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कहीं मसला पैदा हो जाए तो आप अपनी गुफ्तगू से, आपकी अच्छी गुफ्तगू जो है मसले को सुलझाने में हेल्पफुल हो। ये आपके लेक्चर में तो नहीं है, मैं अपने तौर पर ही आपको इसमें अर्ज कर रहा हूँ। अगर आप साथ साथ लिखना चाहें तो भी लिखते जाएं। नेक्स्ट जो है वो, इट बिल्ड्स ट्रस्ट लेवल्स अमंग योर कोलीग्स, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स एंड द सोसाइटी इन विच यू आर लिविंग। ट्रस्ट लेवल को बिल्ड करती है। इट इम्प्रूव्स रिलेशनशिप क्वालिटी। गुड कम्युनिकेशन जो है, वो लोग जिनको मलका हासिल होता है गुफ्तगू का, सब लोग उसके दोस्त बनना पसंद करते हैं। और जो लोग अपने गुफ्तगू में तुर्शी को शामिल करते हैं, दोस्त लोग उससे दूर हट जाते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे। इट फ्यूल्स इनोवेशंस। अगर आप ओरल कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, आप रिटन कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, तो नए नए आइडियाज आपके ज़हन के अंदर आएंगे और यू मे बी एबल टू कन्वे इट प्रॉपर्ली टू योर सुपीरियर्स। आपकी इज्जत में इजाफा होगा, लोग आपकी कदर करेंगे। तो दीज आर नंबर ऑफ फैक्ट्स दैट हैव बीन अटैच्ड विद द बेनिफिट्स ऑफ द गुड कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कौन सी खसूसियात होती है या होनी चाहिए। Communication should demonstrate the following characteristics in order to maximize its impact. Maximizes its impact. कौन सा इम्पैक्ट है? एक खूबी ये है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट मीन्स facts and figures including numbers, times, dates and names must be accurate, as inaccuracies can create a bad impression for an organization. Which can ultimately impact on its credibility and profitability. इसमें मैं बात में करेक्ट कर देता हूं इसको, अभी आप लेक्चर सुनिएगा। अप्रोप्रिएट मीडिया एंड चैनल, this means selecting the right type of communication such as an email, letter, telephone call, report or meeting. कौन सा मीडिया जो है
कौन सा चैनल जो है वो आपका इफेक्टिव है, उसको आपने इस्तेमाल करना है। आप राइट मीडिया चूज करेंगे तो वो उसकी एक खूबी बन जाएगा उसकी। दिस मीन्स सिलेक्टिंग द राइट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपने ईमेल जब करनी है तो उसका एक और वो अप्रोप्रिएट है, या लेटर लिखना अप्रोप्रिएट है, या टेलीफोन कॉल करनी अप्रोप्रिएट है, या मीटिंग अरेंज करनी अप्रोप्रिएट है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा चैनल इस्तेमाल करना चाहते हैं। बिफोर कम्युनिकेटिंग समथिंग, consider how you would feel and what message you would actually receive if it was you receiving that particular message via that particular type of communication. आप जब कम्युनिकेट करेंगे चैनल या मीडिया के अडॉप्ट करने पर, तो सबसे पहले ये ज़हन में जरूर रखिएगा कि अगर मैसेज रिसीव करने वाले की जगह आप होंगे तो आपको कौन सा मीडिया पसंद होगा। आपको लेटर लिखा जाए, आपके साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की जाए, आपको मीटिंग के लिए बुलाया जाए, या आपको ईमेल के जरिए आगाह किया जाए। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अप्रोप्रिएट मीडिया का चुनाव जो है वो जरूरी होता है। क्लैरिटी होनी चाहिए इसके अंदर। क्लैरिटी के अंदर जो है वो आपका केयरफुल चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड कीपिंग द कम्युनिकेशन सिंपल। जितने कम्युनिकेशन को आप सिंपल रखेंगे उतना ही आपके लिए फायदामंद होगा। अगला बंदा जो है वो सुनने वाला उसको जल्दी से उसको वो कर लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज जिसमें इमेज और टोन जो है वो आपकी काउंट हो रही है। हाँ हाँ, the image and tone that are used reflect both the senders and their organization. It is particularly important when communicating with parties external to the business or the organization to set the right image and tone to ensure इससे जो है वो आपकी अप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो है वो हेल्पफुल होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी। कैसे होगी? आपका इमेज जो है वो प्रॉपरली कन्वे होगा, आपका मैसेज जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा। आप बाज़ औक़ात इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि आपके लिखने का मकसद कुछ और होता है लेकिन अगला कुछ और अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऐसे मीनिंग जिसमें से दूसरे मफहूम जो है वो डिराइव हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल न करें। आपको मेरी ये सजेशन होगी कि अपने दफ्तरों के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है उसमें मोटे मोटे अल्फाज डिक्शनरी के लिखने की जरूरत नहीं होती। सादा अल्फाज लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट चीज जो है वो आप लिखते हैं, तो दैट विल सर्व योर पर्पस इन कन्वेइंग योर अप्रोप्रिएट मैसेज।
लेकिन आप मोटे मोटे लफ्ज लिखेंगे, लेकिन बाज़-औक़ात आपको लफ्ज तो बहुत पसंद होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग के शेड्स डिफरेंट होते हैं। तो शायद आपके मौके की मुनासबत से वो चीज़ आपका पर्पस सर्व ना कर सके, और आपका मैसेज रिसीव करने वाला शख्स जो है उसके कुछ और मीनिंग ले ले। अवॉइड दिस थिंग। स्पोर्ट वर्ड्स विद टेबल्स, ग्राफ्स एंड अदर इमेजेस। आपकी गुफ्तगू जो है कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म के अंदर जो आ रही है, उसको आप टेबल्स के जरिए, ग्राफ्स के जरिए और इमेजेस के जरिए आप सपोर्ट दे सकते हैं। Avoid jargon and technical terms useless absolutely unless absolutely essential. आपको टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मसलन आप किसी ऐसी महफिल में बैठे हैं जहाँ पर लोग आपके प्रोफेशन से नाशना है, लेकिन आप अपनी टेक्निकल, अपने फील्ड की बातें वहाँ अपने टेक्निकल टर्म्स के अंदर करेंगे, तो दैट विल नॉट सर्व योर पर्पस। तो ये चीज़ें जो हैं जो इससे अवॉइड करना चाहिए आपको। और जो रोज़मर्रा की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसको लेके आगे चलना जो है वो वो ज़रूरी होता है। देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है यूज्ड इन पब्लिक सेक्टर जो है वो, पब्लिक सेक्टर मीन्स वेयर यू आर वर्किंग। आप लोग सारे सरकारी मुलाजिम हैं, तो सरकारी जो दफातर होते हैं उनको पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो पब्लिक सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, दे ऑफन यूज वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन टू कैरी ऑन ऑफिशियल वर्क। They are used to serve different purposes and requirements. Each one of the forms has practical usage. Their language and phraseology for each category is of different nature. But the fundamental and essential principles relating to drafting a communication are more or less the same for all categories of public sector official communication. आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो आती हैं। आप डिफरेंट तरीके से आप कम्युनिकेट जो है वो लोगों के साथ करते हैं। वो कौन चीजें हैं? वो ये चीजें हैं आपकी कि नंबर 1, लेटर लिखे जाते हैं गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के। हम लेटर लिखते हैं, एक महकमे से दूसरे महकमे को लेटर जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपका जो दफातर हैं वो मोस्टली अकाउंट्स या ऑडिट के ऑफिसेस हैं। तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिट्री अकाउंट्स वाले एमएजी के साथ करते हैं, एमएजी के दफ्तर आपके साथ करते हैं, फिर आप ऑडिटर जनरल के साथ करते हैं, फिर आप सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के दफ्तर के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं। तो ये आप ऑफिशियली लेटर लिखते हैं। ऑफिशियल लेटर्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कम्युनिकेशन या कॉरस्पॉन्डेंस का पहला तरीका है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द जो वर्क है वो ऑफिशियल लेटर के जरिए हो जाता है। एक महकमा दूसरे महकमे को लेटर लिखता है, उसका जवाब आता है, ये लेटरबाजी के जरिए होता है। फिर डीओ लेटर लिखा जाता है। डीओ लेटर जो होते हैं वो पर्सनल लेवल के ऊपर लिखे जाते हैं। एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को बाय नेम लेटर लिखता है, वो डीओ लेटर कहलाता है। अब मैं ये यहाँ पर अर्ज करता चलूं कि ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर एक एक लेक्चर है मेरा। मैं सिर्फ आपको अभी इसकी थोड़ी थोड़ी तमहीद इनकी बता रहा हूँ, बाकी इनके ऊपर मैं स्पेसिमेन आपको दूंगा, मैं इनकी डेफिनेशंस दूंगा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स दूंगा लेटर के, फिर उसका फॉर्म, फिर सैंपल, फिर स्पेसिफिक, सारा कुछ दूंगा। इसी तरीके से डीओ लेटर। तो डीओ लेटर के बाद तीसरी जो कम्युनिकेशन है वो ऑफिस मेमोरेंडम होता है। ऑफिस के अंदर कुछ याद दहानी के तौर पर कुछ चीजें जो है वो ऑफिस इशू करता है, उसको ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं, या सिर्फ मेमोरेंडम कह देते हैं। फिर अनऑफिशियल कम्युनिकेशन मेमोरेंडम होता है। देन एंडोर्समेंट आती है। एंडोर्समेंट भी जो नए नए लोग दफ्तरों में आए हैं वो शायद अभी इन टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन मैं सिर्फ उनको यहाँ पर उनके नाम गिनवा रहा हूँ। देन कम्स नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ये है कि ये गजेटेड ऑफिसर्स जो होते हैं उनके, उनकी छुट्टी, उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर्स, इस टाइप के जो ऑर्डर होते हैं उनको नोटिफाई किया जाता है। और ये नोटिफिकेशन जो होते हैं ये गजेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसको पब्लिश किया जाता है। फिर रेजोल्यूशन होता है, ये भी एक टाइप है पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन की। रेजोल्यूशन क्या है, आप सब लोगों की एक डिमांड है, आप उस डिमांड को आप हायर लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको एक रेजोल्यूशन की सूरत के अंदर उसको हाई अप्स तक पहुंचाएंगे। देन कम्स प्रेस कम्युनिके, या जिसे प्रेस रिलीजेस भी कहते हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान होता है, वो प्रेस रिलीज में जाता है, तो वो प्रेस कम्युनिके या प्रेस रिलीज या प्रेस नोट, तीनों नाम इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। टेलीग्राम भी एक तरीकाकार है जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, लेकिन टेलीग्राम का इस्तेमाल आजकल कम हो गया है, इसलिए कि आजकल तो फौरी तौर पर जो है वो मोबाइल के ऊपर आप मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का इस्तेमाल कम हो गया, लेकिन स्टिल एग्जिस्ट करता है गवर्नमेंट के ऊपर। फिर एक्सप्रेस लेटर जो है, आप मोस्ट अर्जेंट लेटर भेजते हैं, ये भी एक तरीका है। फिर सेविंग ग्राम भी एक है, ये भी मतरूक हो गया, खत्म हो गया। तो ऑर्डर इशू होता है, फिर ऑफिस ऑर्डर इशू। तो ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट की किसी इंस्ट्रक्शन को, गवर्नमेंट के किसी जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान होता है, वो ऑर्डर की सूरत में आता है। ऑफिस ऑर्डर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन या दफ्तर के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है उसको ऑफिस ऑर्डर कहते हैं, जिसके अंदर मसलन कोई सीएमए के दफ्तर के अंदर कितने सारे सेक्शन हैं, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर होने के लिए कंट्रोलर जो है वो आपके ऑर्डर इशू करता है, तो ये ऑफिस ऑर्डर कहलाता है। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन जो है वो आपकी वो पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। अब इसमें पहला जो कम्युनिकेशन का पॉइंट है वो हम लेटर को लेकर, अब वन बाय वन हम इन सबको हम डिस्कस करेंगे। और पहला जो है वो लेटर है। पीछे देखिएगा, मैं फ्रिस्ट के अंदर लेटर का पहला नंबर है, यहाँ पर लेटर को मैं फिर आप डिटेल में लेके आया। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन यूज्ड इन पब्लिक सेक्टर ऑफिसेस। All types of formal official correspondence use it to carry out official functions. Correspondence between different ministries of federal government do not use this form of communication. मिनिस्ट्री के अंदर लेटर एक मिनिस्ट्री को दूसरी मिनिस्ट्री को नहीं लिखा जाता, उसके अंदर वो अनऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं। अनऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या होती है कि एक फाइल के ऊपर वो फाइल ही दूसरी मिनिस्ट्री को भिजवा दी जाती है, वो उसके ऊपर अपने कमेंट्स लिख देते हैं। तो यहाँ चूंकि बात जो है वो ऑफिशियल लेटर की हो रही है, तो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। लेटर हेड बेयरिंग द नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
and the ministry or department. Besides, full address should also be given. Number and date of the communication होती है, name and or designation of the sender होता है, name and designation of the addressee होता है. Brief subject should be mentioned in order to give the addressee an indication of the contents of the letter. Salutation, salutation कहते हैं जो है डियर सर, जो इस टाइप की जो चीजें हैं वो आप देते हैं, और यह सिर्फ सर लिख देते हैं. फिर मेन टेक्स्ट ऑफ द लेटर आता है, फिर सब्सक्रिप्शन आती है. सब्सक्रिप्शन क्या है? जब आप एंड करते हैं, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, इस टाइप के जो अल्फाज आप पेन पर इस्तेमाल करते हैं उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं. फिर सिग्नेचर और डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर जो है वो आते हैं. तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं लेटर के, इसको आपने जहन में रखना है. तो डिफरेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन ए लेटर क्या होते हैं? All official letters which are issued from a ministry and intended to convey the orders or views of the government of Pakistan must specifically be expressed to have been written under the direction of the government. Such an official letter begins with the expression, I am directed to. आपने गवर्नमेंट के लेटर देखे होंगे, तो सीनियर ऑफिस से जब लेटर आता है तो वहां पर जूनियर ऑफिस को लिखा जाता है. जो अफसर लिख रहा होता है तो वो कहता है कि आई एम डायरेक्टेड टू राइट समथिंग, जो भी वो कहना चाह रहा है. तो उसको डायरेक्ट किया गया है अथॉरिटी ने कि आप ये लेटर लिख के नीचे कन्वे कर दो. तो नॉर्मली मिनिस्ट्री के अंदर सेक्शन ऑफिसर लेटर लिखता है, और हमारे जो अकाउंट्स के ऑफिस हैं उसके अंदर एडमिन ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर जो है एडमिन का वो, या ऑडिट ऑफिसर वो लिखता है लेटर. दिस लेटर, द लेटर्स व्हिच आर addressed to official authorities should be started with the salutation, sir. The letters which are used to the non-official individuals or group of individuals should begin with the salutation, dear sir or sirs. The letters addressed to the different firms are to be started with the salutation, gentlemen or dear sirs. All official letters terminate with the subscription, yours faithfully, followed by the signature and designation and telephone number of the person signing the letter. In official letters from heads of individual offices or from individual officers which do not write by the direction of the government but on their own authority, the expression I am directed to is not used, but the form I have the honor to is written. With this written portion of the communication of today's lecture is concerned, next हमारे पास ये सैंपल है, स्पेसिमन है लेटर लिखने के गवर्नमेंट के अंदर. इसको आप जो है वो मैं आपको भेजूंगा जब लेटर तो कम्युनिकेट करूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा और अपने दफ्तरों के अंदर भी आप लेटर निकाल के देख लीजिएगा कि कौन सा सैंपल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है. आप उसके मुताबिक अपने लेटर्स की जो है वो प्रैक्टिस जो है वो करेंगे. इम्तहान के अंदर क्वेश्चन जो है वो आता है कि लेटर आप अदारे को लिखें, फलां शख्स को लिखें, तो फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन आप उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दी है उसके मुताबिक आप इसको जवाब लिखेंगे. तो एक और सैंपल मैं आपको ये भी भेज दूंगा. दोनों लेटर जो हैं वो आपको चले जाएंगे. आप इसकी रोशनी के अंदर आपके जवाबात अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो क्वेश्चन में आए वो आप देख लीजिएगा. इसको कंपेयर कीजिएगा अपने दफ्तरी मामलात के अंदर जो आप लेटर लिखते हैं कि वो कैसे लिखे जाते हैं. With this, we came to the end of today's lecture. The house is open for your question answers. फजूल्ला साहब इन्हें अलाउ करें क्वेश्चन आंसर के लिए.
जी पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन आपके। पहले आप रेज टू हैंड्स प्लीज बोलिए भी। जी पार्टिसिपेंट्स बोलिए। फैजुल्ला साहब जवाब कोई नहीं आ रहा, सवाल कोई नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, फैजुल्ला आवाज आ साहब, रही? हेलो। हाँ ये सवालों के मैं जवाब दे लूं, फिर फैजुल्ला साहब आपसे बात करता हूँ। हाँ हेलो, आवाज आ रही? जी जी आवाज आ रही है जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है आवाज मुझे। सर मैं हाफिज मोहम्मद अरसलान बात कर रहा हूँ लाहौर से। तो कौन सा जैसा कि दफ्तर? 2 दफा CLADS। अच्छा सर जैसा कि पहले भी 2 लड़कों ने मटेरियल के हवाले से आपसे कहा और आपने कहा कि मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि लोग केयरलेस हो जाएंगे, क्लास नहीं लेंगे। सर 70% हाजिरी मस्ट है हमारी, तो हमें मजबूरन लेनी ही पड़ेगी क्लास। तो ये होता है नोट से आप राइट डाउन कर लेते हैं चीज़ें, तो आसान हो जाता है। जैसे आप कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहे होते हैं तो वो मैच नहीं करते, जब आप बाद में देंगे तो याद नहीं रहेंगे कि किस का पॉइंट किस तरह हमने लिखा है, तो वो बाद में हमारे लिए मुश्किल होएगा। नहीं मुश्किल होगा, आप लेक्चर सुनिएगा फिर मेरे नोट्स पढ़ लीजिएगा प्लीज, इट विल सॉल्व योर पर्पस। I have more than 10 years experience of this thing. ओके सर। जी anybody else सर। who has a question? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर उमैर बात कर रहा हूँ CLADS से। सर मेरा क्वेश्चन है, जो ये लेटर का आपने 4 पॉइंट पढ़ाया है तो इसकी मुझे समझ नहीं आई, काइंडली इसको रिपीट कर दें। रीड कर दो उसको। जी जी इसको रिपीट कर दें आप, जरा इसको समझा दें जरा डिटेल में। बेटे ये क्वेश्चन ये जो है मैंने दे दिया है, ये मैं आपको नोट्स भेजूंगा। तो ये मैंने सिर्फ सिंपली ये बताना था लेटर के अंदर कि लेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज मेड इन द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। एक महकमे से दूसरे महकमे को लेटर के जरिए जो है सरकारी दफातर जो है आगाह करते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट साइड इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी डू। बाकी चीजें जो है वो बहुत कम तादाद में आती हैं, मसलन डीओ लेटर बहुत कम आते हैं, आपकी नोटिफिकेशंस भी बहुत कम आती हैं, लेकिन लेटर आप रोजमर्रा जिंदगी के अंदर सरकारी दफातर एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा लिखते हैं। ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम सर। तो जी वालेकुम सलाम।
सर जमील बात कर रहा हूँ CLADS से। अच्छा बॉस, मैंने ये पूछना था कि ये जो आपने इसमें कम्युनिकेशन की जो टाइप्स है इसमें जस्ट एक लेटर के बारे में बताया, तो ये कंटिन्यूसली यानी आपकी कल भी यही क्लास होगी तो आप फर्दर इससे आगे प्रोसीड करेंगे, या मतलब वीक में एक दिन आपकी ये क्लास होगी? जी आपके साथ मेरी 2 क्लासेस वीक में होगी, एक संडे वाले दिन होगी और एक ट्यूसडे को होगी। बाकी जो तरतीब ये रखेंगे पिफा वाले फिर उसको फॉलो करेंगे हम। सर असल में ये सॉरी आपको मैं ये कहना चाह रहा था कि ये टॉपिक का एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया लेटर, तो या तो ये मतलब टॉपिक ही स्टार्ट करते नेक्स्ट क्लास में, तो अभी एक मतलब लेटर के बारे में पढ़ा है तो बाकी यानी एक कंफ्यूजन होगी। हम चाह रहे थे कि नोट्स आप इस तरह से भेजें कि एक जो टॉपिक है ना वो मुकम्मल हो जाए और उसके बाद दूसरा जो है ना वो नेक्स्ट आप लेक्चर में बताएं और उसके नोट्स अलग आप हमें सेंड कर दें। नहीं, मैंने आज देखिए 14-15 किस्में मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, उनमें जी लेटर पहली कम्युनिकेशन है। लेटर के जी बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया है। जी जी सर अब ठीक है। जो है लेटर का स्पेसिमन भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, जी और ठीक आप है सर। अपने दफ्तरों में कल जाके लेटर का सैंपल देखेंगे। तो जी ठीक। लेटर जो है ये आपको इम्तिहान में क्वेश्चन आता है, उसके बारे जी ठीक। में इम्पोर्टेंट चीजें मैंने बता दी हैं, आउटलाइन बता दी है, फॉर्मेट बता दिया है। अब बाकी प्रैक्टिस जो करनी है वो आपने अपने एंड के ऊपर करनी है। उसके अंदर एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है कि आप अपने हायर ऑफिस को लिखें तो आप जूनियर ऑफिस को लिखें या प्राइवेट सेक्टर को लिखें, तो वो चीजें जो हैं वो तो मौके की मुनासिबत से आपने जो है वो कवर करनी है। जी जी लेकिन फॉर्मेट एक ही जैसा रहता है, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। उसको आपने इस एंगल से जो है वो टच करना है। और अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, नईम अहमद बात कर रहा हूँ CMA ISO रावलपिंडी से। नईम नईम अहमद बात कर रहा हूँ CMA ISO रावलपिंडी SO ISO से क्या बनता है बेटे? इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। जी सर। ये कब बना है ये दफ्तर? ये CMA मेरे टाइम में तो नहीं होता था। सर पता नहीं 2020 क्या की क्या अपॉइंटमेंट है उसमें। इसका क्या फंक्शन है ISO का? सर जो भी सिविल पेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके पे एंड अलाउंसेस यहाँ से डील होते हैं। पे जैसे एंड सर अलाउंसेस किन लोगों के हैं? ऑफिसर हैं? ISPR हो गया सर, ऑफिसर भी और नॉन गेस्टेड स्टाफ। अच्छा अच्छा, चलिए क्वेश्चन बोलिएगा अपना। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपका वे ऑफ टीचिंग सर काफ़ी अच्छा था, इजी टू अंडरस्टैंड था हमारे लिए। और सर सेकंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि काइंडली सर पेपर का पैटर्न आप बता सकते हैं कि कितना सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या MCQ, सर इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइन। बेटे ये सारा कुछ मैं करवाऊंगा, आप बस तवज्जो दीजिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी तो आज पहला दिन है हमारा, तो इंशाल्लाह वी विल कम टू द पॉइंट। पैटर्न भी मैं आपको देता जाऊंगा। ये मैं बता रहा हूँ कि वो जो मैंने कंटेंट्स आपको दिए थे ना आपके फर्स्ट सिलेबस के क्वेश्चन उसके जी आएंगे, सर। और अगर उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर मैं क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा आपके साथ, उसको डिस्कस भी करूंगा, वो पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा। जस्ट वेट फॉर द टाइम के अब एक ही दिन में तो सारा कुछ बताना मुश्किल हो जाएगा, आप भी भूल जाएंगे सारा कुछ। तो ये ओके सर। लेटर के ऊपर आपको एक क्वेश्चन आएगा कि राइट ए लेटर टू एनीवन, किसी को भी आए तो आपने फॉर्मेट ये रखना है, अंदर वो जो क्वेश्चन पूछेगा उसके मुताबिक जवाब देना है आपको। ओके और सर। ये लेटर लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, थैंक यू। अब लेटर सारे तो मैं लिखवाने से रहा, आपके दफ्तरों के अंदर जो लेटर आते हैं आप उसको फॉलो कीजिएगा कि किस किस नेचर के लेटर आते हैं। तो फॉर्मेट ये वाला इस्तेमाल करें,
और बीच में जो पूछा गया हो क्वेश्चन के अंदर उसको आप एक्सप्लेन करें। ओके ठीक सर, है थैंक यू। जी, एनीबॉडी एल्स? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आसिफ अब्बासी बात कर रहा हूँ CMA-FW से। मेरा क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट सेक्टर लेटर और पब्लिक सेक्टर लेटर्स में क्या मेन डिफरेंस है? ये मैंने नोट्स आपको दिए हैं, ये आप उसको पढ़िएगा, ये आज शेयर हो जाएंगे, आज ये तो कल तक हो जाएंगे। उसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर लेटर्स में जो डिफरेंस है डिफरेंशिएशन ना, दी मतलब गई। थोड़ा सा लाइटली। देखिए इनका स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग जो है वो डिफरेंट होता है, बाकी चीजें तो वही है जो आमतौर पर लिखी जाती है। स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग जो है वो डिफरेंट होता है। वो सैंपल के अंदर जो है मैंने सिर्फ आपको पब्लिक सेक्टर के लेटर्स देने हैं, आपने प्राइवेट सेक्टर को लेटर जो है वेरी रेयर लिखना होता है। लेकिन आई हैव गिवन द पॉइंट्स इन माय लेक्चर नोट्स कि आपको अगर लिखना पड़ जाए तो आप इस तरीके से लिखेंगे उन्हें। वो ये सैंपल जो है दूसरा, ये प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है उसके लिए। सर थैंक यू सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? फैजुल्ला साहब, फैजुल्ला। जी सर। ये एक क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आया है, ये अनोनिमस अटेंडी, ये साहब कौन है? सर फिलहाल तो इसका ट्रेस कर लेते हैं सर, अभी तो कोई पता नहीं चल रहा है सर। ये अनोनिमस अटेंडी का जरा पता करें मुझे, ये साहब कौन है? और ठीक हो गया सर। हाँ, इसका जरा, क्योंकि ये लिख रहा है कि कुछ इसने लिखा है ऐसा कि मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या कहना चाह रहे हैं। चैट में लिखा है सर। और अगर नहीं तो हम